A very good morning, class. Again, we'll start our class with this pledge. So let us take a pledge with me. I, Kulvinder Kokami, to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, today we will start chapter 3rd from history part, first phase of Indian national movement. 1885 से 1907. So we have three phases of the national movement. Three phases of the national movement. The national movement in India was more or less synonymous with the Congress movement. It can be classified into three phases on the basis of the objectives of the methods of struggle. The three phases are the early nationalist phase, 1885 to 1905 AD, the aggressive phase, the Gandhian phase. In this chapter we'll discuss about the early nationalist moderate phase, time from 1885 to 1905. Aimed at gaining more concessions for Indians, they adopt purely constitutional methods such as making petitions and praying to government for acceptance of their moderate demands. They made those demands in the form of resolutions and petitions. तो अर्ली नेशनलिस्ट जो मॉडरेट्स हुए हैं उनका एम क्या था कि इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशंस दिलवाने. तो उन्होंने वो बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स से कि हम गवर्नमेंट को पटिशन्स देके प्रेयर करेंगे और गवर्नमेंट से एक्सेप्टेंस ले लेंगे अपनी डिमांड्स के लिए, कि मीन्स वो गवर्नमेंट से विद वायलेंस वर्क करवाना चाहते थे. दे मेड दोज डिमांड्स इन द फॉर्म ऑफ, तो ये अपनी डिमांड्स को ब्रिटिशर्स के सामने रेजोल्यूशंस और पटिशन्स की फॉर्म में रखना चाहते थे. तो हु वर द अर्ली नेशनलिस्ट. अर्ली नेशनलिस्ट है कौन थे? अर्ली नेशनलिस्ट कौन से? फ्रॉम 1885 टू 1905 AD द कांग्रेस वाज लेड बाय ग्रुप ऑफ लीडर्स नोन एज मॉडरेट्स और अर्ली नेशनलिस्ट्स. तो in this chapter we'll discuss about two or three early nationalists: Dadabhai Naoroji, Surendranath Banerjee, and Gopal Krishna Gokhale. Main contributions of these reformers. Objectives of the early nationalists. जो early nationalist हुए उनके objectives क्या थे? To awaken and organize organic public opinion, to arouse political consciousness and national spirit of the Indians, to educate and unite Indians on common political and economic issues. जो common political and economic issues है उसके ऊपर इंडियंस को इकट्ठे करना और एजुकेट करना. टू एस्टेब्लिश colonial form of self government होनी चाहिए. colonial form की self government होनी चाहिए, मतलब ब्रिटिशर्स की हेल्प के साथ हमें भी अपनी गवर्नमेंट में इंडियंस को भी पार्ट होना चाहिए, इंडियंस भी होने चाहिए. तो प्रोग्राम ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट मॉडरेट्स का जो था प्रोग्राम कैसा था? द कांग्रेस यूज टू मीट एवरी ईयर टुवर्ड्स द एंड फॉर 3 days और सो. तो कांग्रेस हर साल जब इसका सेशन होता था तो सेशन के एंड में 3 days या इससे ज़्यादा तो ये मीटिंग करती थी. इट वुड डिस्पर्स आफ्टर अडॉप्टिंग सर्टन रेजोल्यूशंस इन लिस्टिंग देयर डिमांड्स विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. तो ये क्या करती थी? तो इनका सेशन डिस्पर्स होता था कुछ रेजोल्यूशंस लेने के बाद, अपनी डिमांड्स की एक लिस्टिंग करने के बाद, और उन्होंने जो रेजोल्यूशंस लिए थे उनको लेते थे अपने सेशंस में, उनको नीचे लिखी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया. फर्स्ट है पॉलिटिकल प्रोग्राम्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. तो द अर्ली नेशनलिस्ट डिमांडेड, तो कि क्या डिमांड थी पॉलिटिकल प्रोग्राम और कॉन्स्टिट्यूशनल में reforms में? To form the Governor General's Legislative Council at the center and to ask for the expansion of the provincial legislative councils as established under the Indian Council Act
एक्ट ऑफ 1861 AD। तो गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंटर के उससे प्रोविंशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंशन करना, बढ़ावा देना as per the under the Indian National Council Act to give more powers to the legislative councils। तो जो legislative councils है उनको ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोविंशनल लेजिस्लेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स देना। टू कंप्लीट द सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन फ्रॉम द जुडिशरी। तो एग्जीक्यूशन एंड जुडिशरी दो ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट है इनके वर्क को अलग अलग रखना, ये भी डिमांड थी अर्ली नेशनलिस्ट की। टू डिमांड फॉर इंडियन कंट्रोल ओवर पब्लिक पर्स दे रेज द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो इन्होंने अर्ली नेशनलिस्ट है जो मॉडरेट्स हैं, इनकी ये भी डिमांड थी कि जो इंडिया है वो पूरी तरह से पब्लिक पर्स के कंट्रोल में आ जाए, एकदम लोगों के अंडर ही हो। दे रेज द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो इन्होंने ये भी एक स्लोगन उठाया कि जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी गवर्नमेंट के कामों में, तब तक हम टैक्स नहीं देंगे, हम कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे। तो दीज वर द पॉलिटिकल प्रोग्राम्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में इन्होंने कौन कौन सी डिमांड्स रखी थी अर्ली नेशनलिस्ट ने, कि ये चाहते थे इंडियंस के लिए हाई लेवल की जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स। तो और इसके साथ ही इनकी ये भी डिमांड्स है कि जो ICS एग्जामिनेशन होता है इंडियन सिविल सर्विसेज का, वो इंग्लैंड के साथ साथ इंडिया में भी होना चाहिए। इसके बाद इनकी थी इंडियंस को आर्मी में हायर जॉब्स मिलनी चाहिए। रिपील ऑफ द आर्म एक्ट ऑफ 1878 AD एंड लाइसेंस एक्ट। तो अपील कर रहे थे आर्म एक्ट 1878 में और लाइसेंस एक्ट में भी ये रीअपील चाहते थे। नेक्स्ट सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम। सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स में इनकी डिमांड्स कौन सी थी? रिडक्शन इन द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू रेट जो है उसमें वो कम किया जाए। रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द पीजेंट चार्ज बाय द जिमीदार। जो जिमीदार किसानों से इंटरेस्ट लेते थे उनको भी कम किया जाए, ये भी डिमांड थी अर्ली नेशनलिस्ट की। ड्यूटी ऑन शुगर एंड सॉल्ट टू बी टोटली एबॉलिश्ड। तो जो शुगर और सॉल्ट के ऊपर ड्यूटी लगती थी, टैक्स लगता था, उसको पूरी तरह से ख़त्म करना ये चाहते थे। टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, गवर्नमेंट लोन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयरन, कोल, पेपर एंड शुगर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो ये क्या चाहते थे? टैरिफ है कि एक टैक्स और ड्यूटी टू बी पेड ऑन अ पार्टिकुलर क्लास ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो टैरिफ प्रोटेक्शन चाहते थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कि वो टैक्स ना लगे। गवर्नमेंट लोन्स फॉर द कि गवर्नमेंट द्वारा लोन्स प्रोवाइड किए जाए आयरन, कोल, पेपर एंड शुगर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए इंडिया में। नेक्स्ट, एन इंक्वायरी टू बी मेड इन India's growing poverty and recurring famine and remedial steps taken। तो जो फेमाइन हुए थे और गरीबी को दूर करने के लिए और जो फेमाइन में जो प्रॉब्लम आई थी उनको दूर करने के लिए स्टेप्स उठाए जाए। Suffering of the Indian coolies and laborers working in plantation abroad ought to be mitigated। तो जो है जो लेबर वर्क था इंडियंस का उनको भी कम किया जाए, ये भी इनकी डिमांड थी। प्रोग्राम्स रिलेटेड टू सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज़। तो सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज़ के रिगार्डिंग इनकी क्या डिमांड्स थी? राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, right to assemble and to form association and to organize meeting to educate the people। तो ये बोलने का, अपने विचार देने के विचारों की इन्होंने डिमांड की। तो इन्होंने ये राइट की डिमांड की कि हम अपने जो एसोसिएशन बनाने के लिए असेंबलीज कर सकें, मीटिंग्स कर सकें और इंडियन लोगों को एजुकेट करने के लिए डिमांड भी रखी। राइट टू सर्कुलेट leaflets, pamphlets and reappear
repeal of the laws imposing censor on the press, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इन्होंने ये अपने विचारों को दूर दूर तक पहुँचाने के लिए लीफलेट्स, जो पर्चे बांटने हैं, पैम्फलेट्स, रिपील, इन सारी चीज़ों की भी मांग की। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। तो इन्होंने स्ट्रगल के मेथड्स कौन से रहे हैं? बाय रेजोल्यूशन एंड पटिशन। तो ये इनका मानना था कि हम अपनी जो डिमांड्स है वो गवर्नमेंट के आगे, ब्रिटिशर्स के आगे बाय रेजोल्यूशन एंड पटिशन्स के थ्रू रखेंगे, बेनती करेंगे हम, और वो ब्रिटिशर्स हमारी ग्रीवेंसेस को समझेंगे और हमारी solutions देंगे। by newspaper, the early nationalists used the newspapers for preparing public opinion and for the propagation of their views and opinions. In these newspapers, the articles or essays by the moderate leaders of the Indian National Congress were published. नेक्स्ट, बाय डेपुटेशन। तो ये बाय डेपुटेशन भी इनका मानना था कि ये अपने जो है डिमांड्स रख सकते थे। द अर्ली नेशनलिस्ट ऑल्सो एडोप्टेड द मेथड ऑफ सेंडिंग डेपुटेशंस फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स प्रोग्राम एंड टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टुवर्ड्स द स्पेशल और पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स। तो अर्ली नेशनलिस्ट का मानना था कि वो क्या करते हैं, डेपुटेशन भेज कर भी अपने जो प्रोग्राम है उनको फुलफिल कर सकते हैं, पूरे कर सकते हैं ब्रिटिशर्स का ध्यान में देखकर। इंडिया टुवर्ड्स द स्पेशल और पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स, दीज डेपुटेशंस मेड द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो ये डेपुटेशन गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हो सकते हैं एंड एम्प्लॉयज़ फेमिलियर विद द फीलिंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये डेपुटेशन पर जाने वाले गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी हो सकते हैं और एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं जो इंडियन लोगों की फीलिंग्स को समझते हो। बाय रेजिंग issues in the Imperial Legislative Council, many Congress leaders like Gopal Krishna Gokhale also tried to raise the public issues in the Imperial Legislative Council. तो बहुत से कांग्रेस लीडर्स ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने कोशिश की पब्लिक इश्यूज़ को Imperial Legislative Council में उठाने की। So failure and achievements of the early nationalists. The early congressmen have criticized on the following grounds. तो कुछ चीज़ों के लिए इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। दे हैव बीन नेम्ड आर्म चेयर पॉलिटिशियंस। तो इनको आर्म चेयर पॉलिटिशियंस बोला गया है। क्यों? द मेथड यूज बाय द अर्ली नेशनलिस्ट पासिंग रेजोल्यूशन एंड सेंडिंग पटिशंस वर क्रिटिसाइज एज inadequate and half-hearted. तो जो रेजोल्यूशन, पटिशन, प्रेयर्स में बिलीव करते थे, इन मेथड्स को क्रिटिसाइज किया गया है। दे फेल टू रियलाइज दैट द ब्रिटिश एंड द इंडियन इंटरेस्ट clashed with each other. Britain was using India's resource to increase its wealth. तो जो ब्रिटिशर्स के और इंडियंस के इंटरेस्ट है वो एक दूसरे से मिलते नहीं थे, एक दूसरे से क्लैश करते थे, एक दूसरे से मिलते नहीं थे। तो ये जो मॉडरेट्स थे, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, वो फेल हुए इनको रियलाइज़ करने में। तो ब्रिटेन वॉज यूजिंग, जो ब्रिटेन था वो सिर्फ क्या करता था, उनको इंडियन की जो वेल्थ है, वेल्थ के रिसोर्स थे उनको इंक्रीज़ कर रहा था अपने ब्रिटेन के लिए, ब्रिटेन में लेकर जा रहा था सारा इंडियन वेल्थ। The early national leaders failed to draw the masses into the mainstream of the national movement. तो जो early national leaders थे वो फेल हो गए आम जनता को भी नेशनल मूवमेंट में अपने साथ मिलाने के लिए। Their area of influence was limited to the urban educated Indians. तो जो early nationalist हुए इनका एरिया सिर्फ एजुकेटेड इंडियंस तक ही लिमिटेड था। In particular, their leadership was confined to professional groups such as lawyers, डॉक्टर, जर्नलिस्ट एंड टीचर्स। तो अर्ली नेशनलिस्ट में सिर्फ यही कैटेगरी के लोग थे, मिडिल क्लास के। तो एजुकेटेड इंडियंस थे, इंडियन अर्बन एजुकेटेड इंडियंस ही इनके इन्फ्लुएंस में आए, आम पब्लिक इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आ पाई। तो दीज वर द फेलियर्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट और मॉडरेट्स। तो इन द नेक्स्ट क्लास we'll discuss achievements of the moderates
and we can say achievements of the early nationalists. With this, goodbye to all of you.